Good morning, students. Today we are going to start the factors on which the resistance of a conductor depends. Okay, so our first factor is resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. देखो बेटा, आपने ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ, इसमें एक्टिविटी थी आपके पास. उसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल वायर लेते हैं, सिंगल वायर से हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, फिर वायर को लेंथ को हम डबल कर देते हैं. देन वी सी दैट as we increase the length of the conductor then resistance of a conductor also increases. It means उसमें से लेस करंट जो है वो फ्लो करेगा. सेकेंड थिंग इज, अगर इसकी जो हम एरिया, इसका जो एरिया है उसको इंक्रीज कर दें, इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ द वायर then we see that as the area increases then resistance will be less, resistance decreases and more current will flow through the circuit. It means our second factor is resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section. Now number third is nature of material. अब मटेरियल क्या है, वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर्स है, इंसुलेटर्स है. सो डिफरेंट मटेरियल हैज डिफरेंट कनेक्टिविटी. ओके, सो उसके रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगी. सो नंबर थर्ड इज नेचर ऑफ द मटेरियल. नंबर फोर्थ इज resistance is directly proportional to the temperature of the conductor. Directly proportional to the temperature of the conductor. As you increase the temperature, then number of electrons in the conductor, they start vibrating about their mean position, and due to this the resistance of a conductor increases. So it means there are four factors. First is the resistance is directly proportional to length. Second is the resistance is inversely proportional to the area. Number third, it depends upon the nature of the material. Number four, resistance is directly proportional to the temperature of the conductor. Now our next topic is specific resistance or electrical resistivity. Specific resistance भी बोल देते हैं, electrical resistivity भी बोल देते हैं. Now how will you define it? As we know that from the factors of resistance of a conductor, we conclude that first factor is resistance is directly proportional to the length. This is the equation number 1. Second factor is resistance is inversely proportional to the area. This is the second equation. From 1 and 2 we conclude that resistance is directly proportional to the length over area. So resistance is equal to, अब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे. सो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद यहाँ पाएगा रो. दिस इज रो. रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी. ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी. सो रो विल बी इक्वल टू आर ए ओवर एल. रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर. ओके, and so resistivity rho is equal to RA over L. Now if area is equal to 1 unit, 1 meter square, length is equal to 1 meter, area is equal to 1 meter square, length is equal to 1 meter, then rho will be equal to R. Rho will be equal to R. So अब इसको हम डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे. The resistivity of a material is equal to the resistance offered by unit length and unit area of cross section of a wire. It means resistivity जो है वो किसके इक्वल होगी. It is numerically equal to the resistance of a conductor if a wire having unit area of cross section and having unit length. तो उसकी यूनिट लेंथ होनी चाहिए, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए. Then resistivity will be equal to the resistance of a conductor. Now its SI unit is, अब देखो आपके पास था रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. अब इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है. सो रो इज इक्वल टू आर की यूनिट आ जाएगी आपके पास ओहम, एरिया की यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर, ओवर लेंथ की आ जाएगी मीटर. सो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा. रो इज इक्वल टू ओहम मीटर. So SI unit of specific resistance or resistivity, this is equal to ohm meter. Okay. Now our next topic is factors affecting the electrical resistivity.
फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। इसमें आपके पास आएगा नंबर 1, फर्स्ट फैक्टर आता है। देखो पहले इसको हम रजिस्टिविटी के फैक्टर निकालेंगे, आएंगे क्या। एज वी नो दैट R is equal to rho L over A. Okay, so it means rho is equal to RA over L. But we know that from Ohm's law, R is equal to ML over A N square tau. A N square tau. As we know that the resistance of a conductor from Ohm's law, ये आपके पास आया था. Now put in equation number 1. आपने R की वैल्यू पुट करनी है, सो वी गेट R की वैल्यू आएगी ML ओवर ANE स्क्वायर टॉ, ANE स्क्वायर टॉ इंटू एरिया। एरिया कितना आ रहा है, एरिया को लिखेंगे A से, सो A से A कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास रिजल्ट आएगा ML से एल भी था आपके पास, आर ए अपॉन एल है तो यहाँ पर एल भी आएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम ओवर एन ई स्क्वायर टॉ। सो दिस इज द रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है, आपके सामने शो हो रहे हैं। नंबर 1 फैक्टर कौन कौन से आएंगे, रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन। अब एन क्या था, एन था नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये शो कर रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा फैक्टर आपके पास आएगा रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. This is inversely proportional to relaxation time. Tau means the relaxation time of free electrons in a conductor. Okay, since tau depend upon the temperature of a conductor, so resistivity of a conductor changes with temperature. With the increase in temperature of the metal of a conductor, tau decreases. Okay, so with the increase in temperature or metal of a conductor, tau decreases and hence tau increases, रो increases. देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो tau जो है डिक्रीज करेगी। अगर tau डिक्रीज कर रही है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। सो आपके पास थर्ड फैक्टर आ जाता है, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, so this is all about the factors of resistivity on which it depends. Next आगे dependence of resistivity on temperature. Next है dependence of resistivity on temperature. So as we know that the temperature coefficient of resistivity is defined as the change in resistivity per unit original resistivity per unit change in temperature. Okay, so we can write it as temperature coefficient can be written as alpha bar. This is known as coefficient of resistivity and can be defined as the difference change in resistivity. Change in resistivity आएगा आपके पास rho minus rho naught. If rho naught is original resistivity and rho is a change in resistivity, so दोनों का जो difference आएगा आपके पास rho minus rho naught आएगा to the original resistivity, that is rho naught into change in temperature, so T minus T naught. So alpha means this is the coefficient of resistivity and it is defined as the ratio of change in resistivity to the original resistivity to the change in temperature. We can also written as delta P. Delta P means for it can be written as इसको क्यों लिख रहे हैं हम, इसको लिख रहे हैं दिस इज शो द ओनली चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी, तो डेल्टा पी लिख सकते हैं इसे रो नॉट इंटू डेल्टा टी।
ओके। अब इसमें डिफरेंट मटेरियल जो है डिफरेंट शो करेगा। पहले आएगा इन मेटल्स और कंडक्टर्स। सो मेटल्स में आता है अल्फा इज पॉजिटिव, मेटल्स में आएगा अल्फा इज पॉजिटिव, दैट इज देयर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द मेटालिक कंडक्टर्स द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू अबाउट 500 केल्विन। देखो रूम टेम्परेचर आपको पता 25 to 30 होता है, तो रूम टेम्परेचर से लेकर 500 केल्विन तक जो है इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटालिक कंडक्टर द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर। इंक्रीज लीनियरली मीन्स उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। सो ये टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर से लेकर 500 केल्विन तक। एट लो टेम्परेचर द कंडक्टर्स लाइक कॉपर एल्यूमिनियम हैव नॉन लीनियर डिपेंडेंस। तो देखो पहले बता रहा है कि जो टेम्परेचर ने बताया रूम टेम्परेचर से लेकर 500 के लिए उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। रो और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और अदर देन मीन्स रूम टेम्परेचर से बिलो और 500 से ऊपर उसका जो ग्राफ बनेगा वो नॉन लीनियर ग्राफ बनता है, लाइक एज। तो नॉन लीनियर जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, और लीनियर ग्राफ बनेगा वो बनेगा 25 to 500 केल्विन के लिए ओनली फॉर दिस टेम्परेचर, और नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा बिलो दिस टेम्परेचर एंड अबव दिस टेम्परेचर। ओके। नंबर 2 फॉर सेमीकंडक्टर्स। इन सेमीकंडक्टर्स सो सेमीकंडक्टर्स में आपका क्या आएगा, इसमें कहता है विद द राइज इन टेम्परेचर द नंबर डेंसिटी एंड इंक्रीजेज विद बट द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। नंबर डेंसिटी इंक्रीज करती है इसमें और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज करता है। व्हाट द इंक्रीज इन एन जो नंबर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज इन एन इट विल कंपनसेट मोर देन डिक्रीज इन टॉ। ये चीज डिक्रीज कर रही है, ये चीज इंक्रीज कर रही है, वो उसको कंपनसेट कर देता है। इस जितना ये डिक्रीज कर रहा है उससे ज्यादा ये इंक्रीज करेगी। इट मीन्स एज वी नो दैट रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टॉ। सो दैट इज रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n इंटू टॉ। सो इस केस में हम ये लिखेंगे। अब ये आएगा इन सेमीकंडक्टर रो डिक्रीज विद टेम्परेचर। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिक्रीज करता है, रो डिक्रीज विद टेम्परेचर। इन सेमीकंडक्टर्स रो डिक्रीज विद टेम्परेचर लाइक दिस, तो ऐसे वो डिक्रीज करेगी। नंबर 3 पे आया था इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में क्या आएगा, द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट बिकम्स लार्ज एट अ टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके। सो बता रहा है रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है इस केस में। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। कहता है इट बिकम लार्ज एट द टेम्परेचर नियर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। So students, this is all about the factors of resistivity and dependence of resistivity on temperature. So we have discussed about the conductors, semiconductors and insulators and the dependence। रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है इसके ऊपर, टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करती है, इंक्रीज या करती है या डिक्रीज करती है। सो उसके हमने डिफरेंट जो है वेरिएशंस हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिए। ओके। सो next topic we will discuss in the next lecture. So I hope you all understand this topic. Thank you very much.